شانوں نے قرآن نے 4 بیان کی ہیں. آج ذرا یہ غور سے سنیے گا، اور ان 4 مراحل کے بعد میں جو آپ کو آج ایک چابی موتی اور سچی صدف کا موتی جو دوں گا اور سچا ہیرا دوں گا، انشاءاللہ دل ٹھنڈا ہوگا. یاد رکھیے گا، جب انسان 4 منظروں سے گزر جاتا ہے، لہو سے، لعب سے، زینت سے، تفاخر سے، اس کے بعد زندگی میں شعور آتا ہے، احساس پیدا ہوتا ہے، پھر زندگی جینے کا نام ہے. اس لیے ہر نبی کو اللہ نے 40 سال کے بعد نبوت دی ہے، 40 سال سے پہلے. لیکن ایک وضاحت کرتا جاؤں، نبی پہلے دن سے نبی ہوتا ہے، اور میری آقا تو اس دن سے نبی تھے جب آدم علیہ السلام نے آنکھ کھولی، دیکھا اللہ کے عرش کے اوپر لکھا ہوا تھا، پڑھے میرے ساتھ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میرے اللہ آپ نے اپنے نام کے ساتھ ایک نام جوڑا ہے، فرمایا آدم اس کی وجہ سے ساری کائنات ہے، اسی کی وجہ سے ہے. اور جب اما ہوا کے ساتھ آدم کا نکاح ہوا تو فرمایا ٹھہرو، ہاتھ بڑھانے سے پہلے ان کا حق مہر دے. یا اللہ کیا حق مہر ہے؟ فرمایا میرے ایک نبی آئیں گے، وہ آپ کی نسل میں سے ہوں گے، لیکن ان کا نام محمد ہوگا، ان کے اوپر ایک دفعہ درود پاک پڑھ لے، یہی ان ہوا کا آدم کا حق مہر ہے. پڑھے اللہم صلی علی. کسی نے پوچھا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے، فرمایا امیر المومنین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اس کا مفہوم کیا ہے؟ فرمایا نیک بیوی. آپ فرماتے شاندار دنیا، شاندار آخرت، فرمایا نیک بیوی. اور اللہ کے حبیب میرے کملی والے نے ایک دعا فرمائی ہے، اے اللہ اس بیوی سے بچانا جو وقت سے پہلے مجھے بوڑھا کر دے، جو وقت سے پہلے مجھے بوڑھا کر دے، جو وقت سے پہلے مجھے بوڑھا کر دے. اور آقا نے تو یہ فرمایا، آقا کا فرمان سچا ہے، اور میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ بیویاں وقت سے پہلے بوڑھا نہیں قبر میں پہنچا دیتی ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں زندگی لاجواب بہترین، ہاں ان کی بات جو کر رہا تھا، مجھ سے کہنے لگے ایک دعا ہے جو آپ بتاتے ہیں، میں نے لوگوں کو بتانا شروع کی ہوئی ہے اور واقعی اس کو بڑا فائدہ ہوا ہے. جو موتی آج میں آپ کو دینے لگا ہوں زندگی میں نسلوں کے، بیوی کے، گھر کے کام آئے. راز کیا ہے؟ فرمایا میرے مرشد نے مجھے ایک عمل دیا تھا، میں وہ عمل کرتا ہوں، اس عمل کی وجہ سے میرے 3 بیٹے ہیں، آخری درجے کے فرما بردار بھی ہیں، آخری درجے کے نیک بھی ہیں، آخری درجے کے ولی بھی ہیں، اور مالدار بھی ہیں. کیونکہ اولاد اگر فقیر منگتی ہو، اولاد اگر تنگ دست ہو، ماں باپ کا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا. اولاد اگر بیمار ہو، ماں باپ کا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا. اولاد اگر فقیر ہو، ماں باپ کا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا. اولاد اگر کسی بری علت میں ہو، کسی عادت میں ہو، ماں باپ کا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا. اور اولاد اگر نافرمان ہو اور غرائے یا تیکھی آنکھوں سے دیکھے، ماں باپ کا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا، آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوتی. تو میں آج آپ کو آنکھیں ٹھنڈی اور ماں باپ کا دل ٹھنڈا کرنے کی دعا بتاتا ہوں جو سالہ سال سے ہے. رمضان کی 23 کی رات میں آج ہم نے زبردست پیکج دینے ہیں آپ کو. اس میں وہ دعا بتاتا ہوں، وہ دعا ہے ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. ہر نماز کی اتحیات میں رب جعلنی کے بعد پڑھنے کی ترتیب بنا لے. اگر یاد نہیں ہے، چھوٹی سی آیت مبارکہ ہے، اس کو آج کے بعد یاد کر لے، زندگی سنور جائے گی، حالات بہتر ہو جائیں گے، ناکامیاں ختم ہو جائیں گی، اور نسلوں میں اور بیوی میں. اب اس کا معنی سنیں، ربنا حب لنا، اے اللہ مجھے، ربنا حب لنا من ازواجنا، میری بیویوں کو یا بیوی کو، وذریاتنا، اور میری نسلوں کو. ذریت سے مراد وہ اولاد نہیں ہے، یاد رکھیے گا، میری بات پھر غور سے سنیں. ذریت سے مراد وہ اولاد نہیں جو یہ اولاد ہے، ذریت سے مراد نسل در نسل در نسل در نسل. ربنا اللہ سے مانگتا ہے. میں نے کہا تھا نا، جو دعا ربنا اور اللہم سے شروع ہو، جو دعا ربنا اور اللہم سے شروع ہو، اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں. ربنا حب لنا من ازواجنا، میری بیویاں، میں اور میری بیویاں، وذریاتنا، اور میری نسلیں. اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے تو پھر کیا چاہتا ہے؟ تو بندہ کہتا ہے قرۃ اعین، لا آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اگر بیمار ہوئے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں، نافرمان ہوئے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں، منگتے ہوئے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں، بھکاری ہوئے آنکھ کی ٹھنڈک نہیں، جواری ہوئے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں، شرابی ہوئے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں، بدکار ہوئے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں، مقروض ہوئے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں، حتیٰ کہ بے اولاد ہوئے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں، دنیا کی کسی مسائل مشکلات الجھنوں میں آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں. اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اللہ پاک نے فرمایا اچھا میں نے بنا دیا. یا اللہ تیری رحمت موجود پہ ایک اور کام بھی کر دے. کیا؟ وجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ ان کو متقیوں کا خود امام بنا دے.
اللہ نیک نہیں، خود نیکوں کا امام بنا دے، نیکوں کا چیف بنا دے۔ اے اللہ صالحین نہیں، صالحین کا بڑا بنا دے، متقین نہیں، متقین کا بڑا بنا دے، صادقین نہیں، صادقین کا بڑا بنا دے۔ مولا ان سب کا بڑے سے بڑا بنا دے۔ اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، جو یہ مانگے گا میں اس کو دے دوں گا۔ مکہ مکرمہ مجھے ایک مجذوب ملے، پرانی بات ہے، مجذوب تھے، ان سے میں نے کچھ باتیں کی، میں نے کہا کچھ نصیحت۔ فرمایا زندگی کا سارا سرمایہ اولاد ہوتی ہے، اولاد کو وقت دو، سختی کے ساتھ نہیں، محبت کے ساتھ۔ ایک یہ لفظ فرمایا، اور دوسرا فرمایا پھر وقت دو جتنا، اتنی دیر دعا کو بھی وقت دو۔ تو میں نے پوچھا کون سی دعا؟ تو انہوں نے بے سخت یہ دعا پڑھی، اور پڑھے میرے ساتھ، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ آمین۔ گھریلو جھگڑوں کا علاج، میاں بیوی کی ناچاکی کا علاج، اولاد کی ناچاکی، نا محبت اور نافرمانی کا علاج۔ اولاد میں آپس میں عمروں میں فرق ہوتا ہے، بڑے کے بعد جو چھوٹا آتا ہے آپس میں ہمیشہ لگتی ہے، کوئی نظام ہے ایسا، اس کا علاج۔ میاں بیوی آپس میں الجھ گئے ہیں، بہن بھائی الجھ گئے ہیں، خونی رشتے الجھ گئے ہیں، اس کا علاج۔ اور زندگی میں اگر بندہ کسی طاقت سے محروم ہو چکا ہے جس کی وجہ سے گھریلو جھگڑے ہیں، اس کا آخری علاج۔ اور بندہ یہ چاہتا ہے کہ اولاد اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، دل کی راحت بنے، زندگی کا سکون بنے، اور بے اولادی نہ ہو۔ آج بار بار پڑھنا، کتنی بار پڑھنا، بار بار پڑھنا، تکرار سے پڑھنا یہ آیت، اور بہت زیادہ پڑھنا، پڑھتے 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 تکرار سے پڑھنا، اور پھر اسی طرح دوسری رکعت میں، اور پھر اتحیات میں تکرار سے پڑھنا۔ رب جعلنی کے بعد ایک دفعہ نہیں، دل کی گہرائیوں سے، اندر کے درد سے، اندر کے سوچ سے، بہت درد سے پڑھنا پڑھنا پڑھنا۔ اور پھر دعا، سلام کے بعد دعا ہاتھ اٹھا کے پھر اسی کو پڑھنا پڑھنا۔ چند دن، چند ہفتے، زیادہ نہیں، گھروں میں جنت کا سامان ہے، حتیٰ کہ یہاں تک لکھا ہے اللہ دنیا میں جنت کی لذتیں دے دیتا ہے۔ اب ایک واقعہ سن۔ 1857 میں اتنی غدر کہتے ہیں اسے، غدر کہتے ہیں، اتنا زیادہ افراتفری ہوئی، لوگ اپنا گھر چھوڑ کے چلے گئے، گھر چھوڑ کے۔ ایک بندہ کئی عرصے کے بعد اپنے گھر واپس آیا، اس کے گھر کا کمرہ تھا، کمرے کے مٹکے میں بہت بڑا مٹکا تھا، اور مٹکے کے اندر اس نے خزانہ سارا دبا، مٹکے کے اندر، کمرے کو لیپ کے پتہ ہی نہیں ہے کہاں ہے۔ آیا کمرے کو کھولنے لگا، تالے کو آواز آئی نہ کھول، ادھر دیکھا کون ہے؟ انہوں نے کہا میرا گمان ہے۔ پھر لگا تو ایک ہیبت ناک آواز آئی، تو میں نے کہا نہ کھول اس کو، پھر گیا۔ 2-3 دن کے بعد کہا، پھر آواز آئی، تجھے کہا نہ کھول، سہم گیا۔ جو دولت تھی ساری اسی کے اندر تھی، کماتا تھا، قسمہ پرسی کی زندگی، غربت میں زندگی آ گئی، غربت کی زندگی آ گئی، اور اسی غربت کی زندگی میں مر گیا۔ مکان کسی اور نے لے لیا، اور مکان کسی اور نے لیا تو انہیں کہا مکان نیا بنائے، خدا تو خزانہ نکل آئے۔ اس نے آ کے کسی کو خواب میں بتایا۔ کس نے؟ جس کا خزانہ تھا۔ اس نے آ کے کسی کو خواب میں بتایا۔ عالم ارواح میں مجھے بتایا گیا، عالم ارواح کی باتیں سچی ہوتی ہیں، وہاں دھوکہ جھوٹ فریب نہیں چلتا۔ عالم ارواح میں مجھے بتایا گیا وہ تیرا خزانہ تھا اور تیری نسلوں کا خزانہ تھا۔ کیا تو نے اپنی نسلوں کے لیے اور اپنے لیے خزانہ مانگا تھا؟ تو نے مانگا نہیں، ہم نے دیا نہیں۔ جنہوں نے مانگا ہے ہم نے ان کو وارث بنا دیا۔ مانگ لو، اس دعا کے ذریعے مانگ لو، اس دعا کے ذریعے مانگ لو، دعا اور دعا پہ کامل یقین۔ تو بتائیں اس کو آج کے بعد کون پڑھے گا؟ اور جس کو یاد نہیں ہے، جس کو یاد نہیں ہے، بس ٹھیک ہے، جس کو یاد نہیں ہے وہ یاد کرنے کی آخری کوشش کیسے کرے گا؟ آخری کوشش آج رات یاد ہو جائے۔ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایمان والے کے نور کی روشنی، اس کی صرف ایک کرن اگر دنیا میں کھول دی جائے، ساری دنیا کی چاند سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی، اور یہ سب روشنی ختم ہو کے ایمان والے کے دل کی نور، دل کا نور، اور پھر اس دل کے نور کے اندر کی خوشبو اتنی ہوگی، اس خوشبو سے سارے مدہوش ہو جائیں گے۔ اس کی خوشبو اتنے زیادہ ہے ایمان والے کی، آپ سارے ایمان والے بیٹھے ہیں، آپ کے اندر کی خوشبو اتنی زیادہ ہے۔ اور فرمایا جس کے اندر ایمان نہیں، اس کی اگر بدبو کو کھول دیا جائے، ساری دنیا کے لوگ بے ہوش ہو کے مر جائیں، اور اس کے اندر کی تاریکی، اندھیرا اگر کھول دیا جائے تو ساری دنیا کے لوگ جو ہیں ایک تو مر جائیں، سورج، چاند، تارے، یہ سب ان کی روشنی ختم ہو جائے، یہ سب اندھیرے میں ڈوب جائیں، اس کے اندر کا اندھیرا اتنا زیادہ ہے۔ یاد رکھیے گا
आपने अपनी हिफाजत ना की, आज मैं हिफाजत का एक खास अमल दे रहा हूं, आपने अपनी हिफाजत अगर ना की, ये लोगों की जहर खा जाएगी। अच्छा, नजर लगाने वाला हासिद नहीं भी है, कीना परवर नहीं भी है। नजर लगाने वाले के लिए हसद जरूरी नहीं, ये मेरी बात गौर से समझें। और नजर लगाने वाले के लिए जरूरी नहीं है कि वो नजर इस तरह लगाए कि वो आपका दुश्मन है, ना ना। बाजों की फितरत में ये चीज, उनकी नजर खून में होती है। वो जिस चीज को ऐसे करके देखें, वो था इंसान है या बंदा या जानवर या दीवार या महल या गाड़ी या बंगला, इससे कैसे बचेंगे? जिंदगी में जब हुस्न आ जाता है किसी भी चीज में, उस पर नजरें पड़ती हैं, फिर इंसान अपने आप को बचाता है। आप बिल्कुल सफेद कपड़े पहने और शफाफ जूता पहने, आगे कीचड़ हो, आप कैसे बचेंगे? और एक बंदे ने गंदे कपड़े पहने हुए हैं, खुद कीचड़ वाले, वो कीचड़ में दौड़ता हुआ जा रहा है, उसे कोई परवाह ही नहीं। हमें बचना है और कैसे बचना है, हमें हिफाजत करनी है अपनी और कैसे करनी है। देखिए, मौत का वक्त मुकर्रर है, लेकिन मौत से पहले एड़ियां रगड़ रगड़ के मरना ये जिंदगी नहीं है। एड़ियां रगड़ 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 के नजरे बद खा गई, हसद खा गया, कीना खा गया, अंदर की जहर खा गई, बोलों की जहर, काटने की जहर, आंखों की जहर, नजरों का जहर खा गया। एक बात याद रखिएगा, जिंदगी बेहतरीन चल रही होती है, लाजवाब चल रही होती है। कोई ऐसी अनदेखी नजर, कोई ऐसी अनदेखी जहर, कोई ऐसा अनदेखा जहरीला तीर हमें खा जाता है और हमारी जिंदगी में कांटे ही कांटे, या घर की तरफ से, या औलाद के गम, या नस्लों का गम, या बीवी का गम, या बच्चों का गम, किसी चीज का भी गम जिंदगी को खा जाता है। जिंदगी कोई भी चीज है का गम है, जिंदगी को खा जाता है और उसके पीछे नजर होती है। आका का फरमान है, अन्नज़्र हक, अल-ऐन हक। याकूब अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे? 12 बेटे थे। उन्होंने क्या कहा था अपने बेटों को? कुरान में कौन सी आयत है बताएं? ऐ मेरे बेटो, शहर के दरवाजे से इकट्ठा ना जाना, जुदा जुदा होके जाना। लोग कहेंगे इतने सारे बेटे, गबरू जवान है, इकट्ठे होके ना जाना, जुदा जुदा होके जाना। जब दौलत होती है, जब माल होता है, जब दौलत का कमाल होता है, फिर एहतियात और हिफाजत बढ़ जाती है। अब मेरे पास एक कीमती खजाना है, अब मेरे पास माल है, अब मेरे पास दौलत है, अब मेरे पास एक सरमाया है। आपके पास पहला सरमाया ईमान का है, आपके पास दूसरा सरमाया जान का है, आपके पास तीसरा सरमाया जिंदगी का है, आप पास चौथा सरमाया खुशियों का है, आपके पास पांचवा सरमाया बिस्मिल्लाह अला दीनी, ये सरमाया, ववालदी औलाद, ये सरमाया, वाहली घर वाले, सरमाया, ववालदी वाहली वमाली, बिस्मिल्लाह अला दीनी, ये सरमाया, व नफ्सी अपनी जान, सरमाया, ववालदी औलाद, सरमाया, व अहली घर वाले, सरमाया, व माली, और माल क्या है? ये सरमाया है। कैसे बचाएंगे इसको? सबसे पहला हसद शैतान ने किया था। उसने कहा था कि ये मेरे होते हुए इंसान क्यों आए, और उसने इंसान से हसद किया। और उसने इंसान के साथ क्या हसद किया? इंसान की जिस्म को अल्लाह पाक ने जब बनाया, इसकी जो मिट्टी बची, इस मिट्टी के साथ अल्लाह ने खजूर का दरख्त बनाया, जो मिट्टी बची, इसलिए आज भी खजूर जिंदगी हमारे लिए मुफीद है। इसकी नाफ में से ना फरिश्तों ने मिट्टी निकाल के ऐसे फेंकी, इसने हसद किया, उसमें अपना लुआब, शैतानी लुआब मिला दिया, उस मिट्टी से कुत्ता बना। कुत्ते के अंदर बड़ी सिफात हैं, वफा की इंतहा है, पर खून खारी है, और इसलिए इस्लाम ने अगर हिफाजत ना हो, हिफाजत तक कुत्ते को जायज, वरना नाजायज कि उसके अंदर शैतान की हसद का लुआब मिला हुआ था। क्या हाल है इस हसद का? मैं बड़ा अहम मौजू लेके आज आपके पास आया हूँ। मैं आपका पासबान हूँ, मैं आपका मुहाफिज हूँ, मैं आपका चौकीदार हूँ, मैं आपका खैर खा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी जिंदगी में अगर आज खुशी है तो कल भी रहे, आज सेहत है तो कल भी रहे, आज जिंदगी है तो कल भी रहे, आज नस्ल औलाद है तो कल हंसे बसे, आज अगर रब और घर और तमंगरियां हैं, सवारियां हैं, तो कल इससे ज्यादा हो, छिन न जाए। मेरी मिन्नत है, मेरी दरख्वास्त है आपसे, छिन न जाए। अगर ये छिन गई, बड़ा घाटे का सौदा होगा। और मैंने छिनते और रोते लोग बहुत देखे हैं, मैंने छिनते और रोते लोग बहुत देखे हैं, और मैंने लोगों की जिंदगियों में बहुत ज्यादा बर्बादी देखी है और नुकसान देखा है, नुकसान देखा। अगर छिन गया सब कुछ, माल, दौलत, इज्जत, वकार, शान शौकत, और वो छीनने के पीछे सिर्फ हसद होगा,
یا नजर बद होगी, या कीना होगा, या कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ नजर बद होगी। और उसके खून में नजर बद है और उसकी फितरत में नजर बद है। इसका क्या हल है? आप आबाद रहें, शाद रहें, आप खुशहाल रहें, आप बामुराद रहें, आप सेहतमंद रहें। आज के बाद आपके पास है तो कल भी हो। इतने लोग थे। मुझे एक बंदा कहने लगा, मेरी गाड़ी के अंदर ये लोहे अपना सोने के बिस्किट होते हैं, 5-5 10-10 तोले के सोने के, कहने लगे पड़े थे। मुझे पता नहीं, एक दफा गाड़ी का टायर पंक्चर हुआ, मैंने डिग्गी जो था ना उसमें स्टिपनी होती है, उस गड्ढे के अंदर वो 5-10 तोले के सोने के वो पड़े हुए थे बिस्किट। मुझे पता ही नहीं था। अच्छा, मैंने कहा ये भी पड़े हैं। कहने लगे 6 रुपए किराया लगाए। उस वक्त मुझे बता रहा था गुलशन रावी से, यहाँ मेरे पास 6 रुपए किराया नहीं था। आज एक दौलत का हाल ये था। और एक दौलत का हाल, मैं सुबह सरद में गया, वहां एक इलाके में मुझे कहने लगे आपको एक बंदे से मैं मुलाकात करवाऊं, आपकी एक बंदे से मुलाकात करवाऊं। मैंने कहा करवाएं। एक बंदे के पास ले गए। उसके घर में मिट्टी धूल थी और बिल्कुल वीरानी थी। और एक साहब बैठे हुए थे, मुलाकात की और उसने जो हाल सुनाया ना, उसने मेरा सुबह नाश्ता कराची में होता था, दोपहर का खाना मेरा इंग्लैंड में होता था, शाम का खाना स्विट्जरलैंड में होता था, फिर रात का खाना और फिर सुबह का खाना अमेरिका में होता था। मेरा बहुत बड़ा बिजनेस था और मेरे बहुत शिप थे, अपने साथी बैरी जहाज थे। बस एक कोई ऐसा बंदा मिला जिसकी मुझे नजर खा गई। ये अल्फाज हैं उसके तस्वीरें लगी हुई थी बड़े बड़े लोगों के साथ। और कहा बड़े लोग उसके साथ खाना खाने को एजाज समझते थे और बड़े लोग उससे टाइम लेने में वक्त लेते थे, यानी बड़ा वक्त लगता था। उसके पास टाइम नहीं होता था, टाइम नहीं हो। मैं आपको खुलूस से कह रहा हूं, आपके पास सब कुछ है, सब कुछ है। और अगर मालो दौलत है, आपके पास सरमाया है, आपके पास रिस्क, सब कुछ है, लेकिन अगर आपके पास हिफाजत का निजाम नहीं है, हिफाजत का निजाम नहीं है, तो लुटे जाएंगे, मारे जाएंगे। मैं एक जगह से आया तो एयरपोर्ट से उतरा, एक साहब ने गाड़ी में बिठाते कहा एक मेहरबानी करें, मेरे एक दोस्त हैं, उससे मुलाकात कर ले। मैं कहा ठीक है चलें। यहाँ लाहौर में एक इलाका है, उसको टाउनशिप में कहते हैं। मुझे वहां ले गया। एक घर था, उस घर की एक बैठक में 2 पुरानी कुर्सियां पड़ी थी, एक टूटी हुई टेबल यानी मेज पड़ी थी और एक साहब बैठे हुए थे, बिल्कुल वीरान, उजड़े हुए। उनकी दवाई उस वक्त बनी को 100-150 रुपए की। तो उसने ना उनकी तरफ ऐसे देखा। मैंने लिख दी बाजार से लेनी थी, बाजार से लेनी थी। ये उस दौर की बात है जब मैंने यहाँ लाहौर में अपनी दवाएं बनाना शुरू नहीं की थी। तो उसने कोई मसला नहीं, चौधरी साहब ले लेंगे। मुझसे कहने लगे चौधरी साहब इनको जरा अपना हाल तो सुना। कहने लगा मेरा सेस्ना त्यारा होता है, जहाज क्या होता है, अपना जहाज था, मेरा सिक्का चलता था, लोग मेरा इंतजार करते थे, मेरे महल्लात थे, मेरे पास जहाज और गाड़ियां थी। मैं जब जहाज उड़ाता था तो बहरी जहाजों पे लैंड करता था, फिर बहरी जहाजों के अंदर मैं फ्रेशमेंट खाने खा के मेरा जहाज उठता था, फिर किसी और जगह चला जाता था। मेरी ये जिंदगी थी, मुझे खा गई कोई चीज। आज इस शख्स ने मुझे अपने घर की बैठक में जगह दी है, ये घर मेरा नहीं है। 2 वक्त की रोटी और चाय मुझे मिलती है और मेरे पास 100-150 रुपए दवा के नहीं है। ये मेरा हाथ देखें, मेरे हाथ के बाएं तरफ चौक है, आप जाने ये चौक है, 6 सड़कों का संगम है। लाहौर की बड़ी 6 सड़कें यहाँ से शुरू होती हैं। ये लाहौर पुराना लाहौर है। आप अंदरून शहर में बैठे हैं, शहर पुराना लाहौर, इसके बाद अगला पुराना लाहौर शुरू होता है जो बहुत पुराना है। यहाँ 2 प्लाजे हैं, इसी मालिक के थे। और एक वक्त वो आया, यहाँ गुलबर्ग में एक कसाई है, उसके पास जाता था। कसाई 100-200 रुपए चुप करके उसके हाथ में देता और वो घर की सब्जी खाना लाता था। कसाई से ताल्लुक क्या था? कसाई से ताल्लुक ये था कि एक वक्त एक वक्त था जब 2 मन रोजाना 3 मन रोजाना कसाई गोश्त देता था, आला खाने पकते थे, बड़े बड़े लोग आते थे, उसके खाने उसकी दावतें होती थी। जब लुट गया सब कुछ तो जीने का ख्याल आया, सब कुछ जब खत्म हो गया, फिर कसाई को पता था इसके हाल नहीं है। और कसाई भी कहता था कि मियां साहब मैंने आपसे बहुत कमाया है, 100-200 ले जाएं, अपने घर का आज की दाल दलिया कर ले। पलाज़े मौजूद हैं, आज भी इसी चौक पे वो प्रॉपर्टी मौजूद है, वो खत्म हो गया। यहाँ मुस्लिम टाउन में एक बहुत बड़ा तालीमी इदारा है, मैं वहां बैठा हुआ था। तालीमी इदारे में
मुझे बंदे ने कहा, ये सामने देखा है आपने महल? हाँ, मैंने कहा महल देखा है, बहुत बड़ा महल। आप नहीं गुमान कर सकते कि लाहौर के बड़े महल्लात में से एक बहुत बड़ा महल है। कहा जो इसका मालिक है अब वो इस कमरे में रहता है और खिड़की खुलती है तो अपने महल को देखता है, आंसू बहा के खिड़की बंद कर देता है। क्यों? एक वक्त था ये मालिक हमारे तालीमी इदारे को डोनेशन पैसे देता था और वो खरबोपति था। जिस दौर में गाड़ियां नहीं थी, 14,000 रुपए की गाड़ी फिर महंगी हो गई 16,000 रुपए की गाड़ी, इसके पास बेबहा गाड़ियां होती थी और किसी से खुश होता था उसके घर तोहफे के तौर पे आम की पेटी नहीं भेजता था, गाड़ी भेज देता था। तोहफे के तौर पे गाड़ी की भेज देता था, बिल्कुल 0 मीटर गाड़ी उसके दरवाजे पर खड़ी होती थी। बंदा जाता था, चाबी पेश करता था, जनाब मियां साहब ने आपको गाड़ी भेजी है। फिर जो हालात की गर्दिश हुई और ऐसा निजाम बदला, ऐसा निजाम बदला, आखिर उस छोटे कमरे में रहते रहते वहीं मर गया। अल्लाह पाक ने अगर आज आपको कुछ माल दौलत चीजें दी हैं, मुझे जवाब दें, इसकी हिफाजत का आपने क्या सोचा? इसकी हिफाजत के लिए क्या तदबीर की? इस हिफाजत के लिए क्या अंदाज अख्तियार किया? इसकी तदबीर क्या सोची? इसका अंदाज क्या सोचा? इसको कौन लूटने वाले लूट के ले जाएंगे, खाने वाले खा के चले जाएंगे, जिंदगी में बर्बाद करने वाले बर्बाद करके चले जाएंगे। याद रखिएगा, सांप को डसने में मजा नहीं आता, पर सांप का काम डसना है। बिच्छू को डसने में मजा नहीं आता, पर बिच्छू का काम डसना है। याद रखिएगा, अनदेखे वार के लिए अनदेखा हिफाजती निजाम चाहिए। देखें, नजरे बद अनदेखा वार है। मेरी बात को जरा गहराई में जाइएगा। नजरे बद अनदेखा वार है? कीना अनदेखा वार है, हसद अनदेखा वार है, बुग़्ज़ अनदेखा वार है, इंतकाम अनदेखा वार है, जादू नजर नहीं आता, अनदेखा वार है, जिन्नात नजर नहीं आते, अनदेखा वार है। तो अनदेखे वार के लिए अनदेखा हिफाजती निजाम चाहिए। आज देखा वार, तलवार देखा वार है, ढाल चाहिए। ऐसे गोली देखा वार है, बुलेट प्रूफ चीज चाहिए जहां गोली असर न करे। बम देखा वार है, बम प्रूफ कोई निजाम चाहिए, बम असर न करे। अनदेखे वार के लिए अनदेखा निजाम चाहिए। वार अनदेखा है, जादू है, जिन्नात है, नजर बद है, बंदिश है, हालात है, नाकामियां है, परेशानियां हैं, कर्जे हैं, बदहाली है, बेऔलादी है, घरेलू झगड़े हैं, नाचाकी है, नफरतें हैं, औलाद की बेहरा रवी है, उनकी तेज और तीखी और तिरछी आंखें हैं, या उनके उल्टे हाथ हैं, या उनकी चाल में खराबी है, या उनके चाल चलन ठीक नहीं है। अनदेखे वार हैं शैतानी, जिन्नाती जादुई नजरे बद के। इसके लिए अनदेखा निजाम है। वो अनदेखा निजाम अर्शी निजाम है। वो फर्शी निजाम नहीं चल सकेगा, वो अर्शी निजाम है। उस अर्शी निजाम के लिए आपने क्या सोचा? अगर न सोचा, अगर इसमें तवज्जो न की, देखें, जिसको गरज होती है ना, जिसको तलब होती है, जिसको गरज होती है और तलब होती है, और जिसको गरज और तलब होती है वो पहले बैठता है, वो पहले आता है। जिसको भूख होती है वो हाथ में कटोरा लेके लाइन में पहले खड़ा होता है। जिसको गरज नहीं होती, जिसको तलब नहीं होती, उसको पर्चियां दे के कमरों से निकालना पड़ता है, कुर्सियां देनी पड़ती हैं, और वो कहता है मैं तुम्हारा वीआईपी मेहमान हूं। उसको गरज नहीं है, वो नादान है, उसे होश नहीं है कि उसके ऊपर हुआ क्या पड़ा है, उसके साथ हुआ क्या पड़ा है, और उसकी नस्लों के साथ क्या हो रहा है, आंखों से देख रहा है। और उसके बाद उसको जरूरत नहीं है इन मजालिस की, इन मुबारक मजमू की, इन बरकत वाले निजाम की, उसको जरूरत नहीं है। वो नादान है, वो अपने साथ ज्यादती और जुल्म कर रहा है, वो अपने साथ ज्यादती और जुल्म कर रहा है। कहां से निजाम लाएंगे हिफाजत का? लुट जाएंगे। आपने उरूज को देखा, बड़े बड़े उरूज की कहानियां सुनी, और उनका जवाल नहीं देखा बल्कि इबरत का जवाल देखा। मेरे रब ने अगर बलाएं भेजी हैं तो आप उसका साथ इलाज भी दिया है। मेरे रब ने अगर बलाएं भेजी हैं साथ उसकी तदबीर भी दी है। मेरे रब ने अगर बलाएं भेजी हैं साथ उसका रास्ता भी दिया है। अगर कोई लेने वाला न हो और अपने आप को खुद कहे आओ मुझे बर्बाद करो, तो उसका क्या हाल है? कैसे बचे इससे? 3 चीजें बताता हूं, और ये 3 चीजें मेरी जिंदगी का हिस्सा है, निचोड़ है, याद रखिएगा। मुझे अफसोस इस बात का है कि हमारे अंदर तलब सच्ची नहीं है, तड़प सच्ची नहीं है। जिसके अंदर तलब और तड़प होती है, जो कहता है ये मेरी जरूरत है, उसको बुलाया नहीं जाता, उसके लिए बंदे नहीं भेजे जाते,
हाँ, याद रखिएगा, बेतलब को रब कभी नहीं देता। अबू जहल बेतलब साथ रहा, हजरत उवैस करनी तलब वाले थे, देखा नहीं कहा यमन में, वहीं तड़पते रहे। रब ने अबू जहल को गाली बना दिया और ख्वाजा उवैस करनी को इज्जत का ताज पहना दिया। अल्लाह के यहाँ तलब है, करीब रह के तलब में, दीवार के साथ दीवार है, बेतलब है, रब महरूम कर देगा। अल्लाह कहेगा जा, मुझे जरूरत नहीं है, तुझे मेरी जरूरत नहीं है तो मुझे भी तेरी जरूरत नहीं है। और उवैस करनी तलब वाले थे, रब ने अता कर दिया, रब ने दिखा दिया। याद रखिएगा, अपनी तलब को जिंदा रखें, अपनी तलब को बेदार रखें, और कभी यह ना देखें कौन बात कर रहा है, 2 टके का आदमी है, ये देखना बात किसकी है। मैं मिरासी हूँ कमली वाले के दर का, दरे मुस्तफा का, मुझे ना देखना। मैं डाकिया हूँ, मुझे ना देखना, अपनी डाक देख लेना, क्या इस पे आपका नाम लिखा हुआ है। मेरी पैगाम को, मेरी आवाज को ना देखना, मैं किसका पैगाम सुना रहा हूँ, मैं किसका सफीर हूँ, मैं किसका गुलाम हूँ। बेतलब जिंदगी साथ रह के भी महरूम रह जाएगा। उन्हें पता है यहां से ठीक होके जाएंगे, नहीं होते। दुनिया पागल है, ऐसी आती है। अल्लाह के खजानों से मिलता है, अल्लाह के नाम की बरकत से मिलता है। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। आए फिर मैं 3 चीजें देता हूँ आपको, 3 चीजें। पहली चीज ये है, पहली चीज, ये जो जिन्नाती शैतानी चीजें हैं, जिन्नाती चीजें हैं, इनको हदिया देते रहे, हदिया देते रहे, गोश्त की शक्ल में या अपनी खाई हुई हड्डियों की शक्ल में। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, मेरे आका ने, इन हड्डियों को फिर से गोश्त लगता है, गोश्त नहीं ग़िज़ा लगती है, अल्फाज जो है उनकी ग़िज़ा लगती है, और अल्लाह उनको खिलाता है। एक तो इनको ग़िज़ा देते रहे गोश्त की शक्ल में, इन हड्डियों की शक्ल में, या कोई गोश्त के टुकड़े, छीछड़े, या कोई चील गोश्त, इस तरह की ये चीजें देते रहा करें, जरूर दिया करें। एक दूसरी, जब भी एक दूसरे को देखें और शीशे में अपने आप को देखें और अपनी महबूब चीज को देखें और बार बार देखें, तो फौरन कहे बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। पढ़े मेरे साथ, बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला। अपनी जिंदगी का मामूल बना लें, नजर बद टूट जाती है। मुझे एक साहब ने कहा कि एक हमारे इलाके में आदमी था, उसकी नजर बद मशहूर थी। वो चैलेंज के साथ आया, सुनाया कि तेरा पीर दुआएं बताता है, वजीफे बताता है, आ फिर मेरी नजर का भी तोड़ तेरे पास है। चैलेंज के साथ आया, मुझे खुद कहने लगा। मैंने उसको सुना ना कि आ रहा है, कहा, मैंने ये पढ़ना शुरू कर दिया। उसने आके कहा क्या चीज तुड़वानी है, चैलेंज के साथ, बाजू, अपनी गर्दन, पसली, सामने पड़ा हुआ घड़ा, दीवार, टारगेट, चैलेंज, गाय मरवानी है, भैंस, बकरी, बोल। मैंने कहा जो जरा चिल चाहे वार कर, कहा सोच ले, कर कारवार। कहा मैंने उसको ऐसे देखा और बिस्मिल्लाह माश दिल में पढ़ रहा हूं, और उसने अपनी ताकत की नजर से देखा, कुछ नहीं हुआ, फिर ताकत की नजर से देखा, कुछ नहीं हुआ, फिर ताकत, ऐसे कहने लगा। मैंने कहा ना कर, आंखें बाहर निकल आएंगी जो मैं कमर पढ़ रहा हूं। कहा उसने अपनी ताकत आजमाई, तुझे तेरी अदा पसंद, मुझे मेरी अदा पसंद, तुझे खुद ही पसंद, मुझे खुदा पसंद। उसने कहा चैलेंज भी आया, मुझे खुद बताया उसने, बोल कौन सी चीज तोड़वानी है, तेरा पीर वो वजीफे बताता है। और उससे लोग डरते थे और उसकी खिदमत करते थे और उसकी माफियां। अच्छा जनाब, जिसके पास चला जाता तो उसकी नाजायज मान लेते थे, अगर ना मानी बर्बाद कर देगा। इसकी नजर के अंदर 2 धारी तलवार है। मेरे पास चैलेंज करके क्या तोड़ूं, क्या बर्बाद करूं। मैंने कहा जो तेरा दिल चाहे कर। और कहा मैंने भी सख्त जलाल और तवज्जो के अंदर, ऐसे तसव्वुर के अंदर पढ़ना शुरू कर दिया उसको देख कैसे। मेरी ताकत ने, मेरे रब की ताकत ने, इस दुआ ने उसकी शैतानी ताकत और नजर बद को तोड़ के रख दिया। और अगली बात सुने, उसके बाद उसकी नजर खत्म हो गई, सल्ब हो गई, सल्ब हो गई, छिन गई, छिन गई, छिन गई, छिन गई। बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हाँ, कई लोगों ने मुझे बताया कि हमने जिन्नात को हदिये देने शुरू किए और जिन्नात को माल चीजें देनी शुरू की, और जिन्नात ने जो है हमारे साथ फिर कहना शुरू कर दिया कानों में आके, आप हमें इतना कुछ देते हैं, आप इतना माल देते हैं, इतनी चीजें देते हैं, हमें आप शर्म आती है, हया आती है, हम आपको नुकसान पहुंचाए, हमें फला ने आपके ऊपर मुसल्लत किया था और हम उसके ऊपर पलट कर जा रहे हैं। एक हदिये दें उन्हें, गोश्त, हड्डियां, चीचड़े, ये चीजें, चील कवों को डाल दें, बिल्लियों को डाल दें, हदिया दें। दूसरी चीज बिस्मिल्लाह है, बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और तीसरी चीज जो है ना, तीसरी चीज सदका, माल का, माल का सदका। और गोश्त का सदका
उसका वाकया भी सुन लें। ये शुजाबाद का वाकया है। मुल्तान के साथ एक शुजाबाद नवाब शुजाउद्दौला होते थे, उनके नाम पे शुजाबाद है। लगता है मेरा तसव्वुर करके आप मसनून दुआएं, हिफाजत वाले अमाल, तस्बीहात, 6 बिस्मिल्लाह 500 होते नहीं पढ़ रहे। चलो मर्जी है, मेरी तरफ से वफा होगी। तू जफा की हद कर, मैं वफा की हद करूं। तू अपनी ताकत आजमा, मैं अपनी ताकत आजमाऊं। तुझे तेरी अदा पसंद बेवफा की, मुझे मेरी अदा पसंद वफा की। चल जा। तो वो एक कत्ल के मुकदमे में चला गया, कत्ल नहीं किया था, बाकी छूट गया। यह गरीब था, सारा मलबा इसी के गले में फंदा आया। 302 में हद तक इसको फांसी की सजा हो गई। दिनों का इंतजार हो रहा, वो दिन भी आ गया जिसकी सुबह इसको फांसी होनी थी। और मुलाकाती आ रहे हैं मुलाकात करने के लिए। माँ बूढ़ी थी, आई, अम्मा रोई कि बेटा तू ही एक बेटा था सहा। लगा अम्मा तेरी को, अम्मा पूछ लेगी तेरी कोई वसीयत। मेरे अम्मा, मेरी वो बच्ची थी ना जो गाय को, बच्चियों को मैंने पाला था, वो खड़ी है, वो मैं कुर्बानी कर दो, खैरात कर दो। अब मैं तो रहा नहीं, तो मैंने तो उसको गाय, फिर उसको पाला था शौक से, मेरी गाय होगी, फिर दूध पीऊंगा, फिर उसके बच्चे होंगे वगैरह। माँ ने कहा बेटा अगर तू नहीं रहा तो मैं भी उसको। माँ ने जाते ही आखिरी मुलाकात की और जाते ही उसको ज़बह करा के गोश्त गरीबों में तकसीम करा दिया, उसको खैरात कर दिया। सुबह जब तख्तेदार पे उसको चढ़ाया, वक्त मुकर्रर के बाद जब उसको उतारा तो वो जिंदा था, उसकी गर्दन खिंच चुकी थी। एक वक्त मुकर्रर होता है, उस देखा जाता है। उसको फंदे से निकाल के अस्पताल में कई दिनों के बाद होश आया, फिर वो ठीक हो गया। गर्दन उसकी खिंच के बहुत लंबी, आंखें बाहर निकली हुई, बाकी उसकी सेहत ठीक हो गई। और दूर से वो नजर आता था, इतनी लंबी गर्दन, इतनी निकली हुई आंखें, और वो साल साल जिंदा रहा। उससे पूछा तू कैसे जिंदा रहा? कहा जब मेरे गले में फंदा, पीछे हाथ मेरे बंधे हुए, पांव बंधे हुए, गले में फंदा डाला। जब फंदा डाला ना तो मेरे पांव के नीचे बच्ची के सींग आ गए, ऐसे मैं खड़ा हो गया। नीचे सींग आए और मेरे पांव उसके ऊपर ऐसे टिक गए और मैं उसके ऊपर खड़ा रहा वक्त मुकर्ररा। और आपने आके मुझे उतार लिया, मैं बेहोश था, लेकिन मुझे एहसास था कि मैं अपनी बच्चिया जो गाय की, उसके सींगों पे खड़ा हुआ। एक तो गोश्त, छिछड़े, कोई हड्डियां, दूसरा बिस्मिल्लाह है।